Hello, dear friends. Welcome back to my channel of literary art. In today's session, we are going to study the poem Eve by Rudyard Kipling. In the previous session of my YouTube channel, we already studied Rudyard Kipling's speech, Values in Life, and today we are going to study the poem by him, that is Eve. So, friends, earlierly also I have made one video, and today let us see his poem If. Friends, first of all, the short description और the introduction to the poet. पहले थोड़ा सा परिचय हम कर लेंगे. इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने अपलोड की है उसमें भी मैंने संक्षिप्त में ऑथर का बायोडाटा यहाँ पे दिया हुआ है, उनका परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज के इस सेशन में भी थोड़ी बहुत हम उनके बारे में जानकारी ले लेंगे. He is one of the most well-known poets and storytellers of the late Victorian era. He received a Nobel Prize for Literature in 1907 for his book, The Jungle Book, The Kim and Eve. These poems became very popular. These books have become very popular by Rudyard Kipling. And Kipling was born in Bombay, India itself, but he died in London. So, friends, let us turn towards the poem. See here the brief introduction to the poet I have given already in the slide. You can see and read that how he looks. The image is provided. Then the short description or introduction to the poet. See, and we shall now turn towards the poem itself. If the poem, he has written this poem. This is the teaching, a type of teaching which he has given to his son. Here he is giving teachings to his son, and what he says through these teachings is that one must take risks in his life. The person should not control one's emotions and actions. Kipling here basically is telling to his son to have enough trust and confidence in himself and to stay loyal to himself. He also appears to imply that his son will have faith and confidence since he knows himself. It is a self-sustaining loop. Cycles are endless, according to Kipling. Success is measured by certain things of one's nature, and what it includes actually: the self-pride, humility, the respect we provide to the others, the calmness, patience, tolerance which we maintain in the difficult situations, how we overcome the worst conditions and become successful in our life. These are certain things which he has preached to his son. What he actually says to his son in the poem that we have to study. See, I shall read the poem line by line and I shall explain it to you. देखिए क्या कहते हैं वो यहाँ पे. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. So, what is the teaching in the first stanza which the poet is giving to his son is that if you can stay calm, अगर कोई बहुत ही
इनटॉलरेबल सिचुएशन है और सभी लोग आप पर आपको ब्लेम कर रहे हैं उस कंडीशन के लिए, जबकि आप उस कंडीशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी आप आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? You must stay calm. He says, you must stay calm when everyone around you is blaming you and holding you responsible for their condition, worst condition. You can be confident even when no one trusts you. कोई भी आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है while taking other people's concern into considerations and सब इस सिचुएशन को पूरी तरह से टॉलरेट करना है। उसी के साथ आपको पता है कि सामने का इंसान आपको झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके साथ आपको झूठ नहीं बोलना है। यू शुड नॉट लाई। If you can wait and not to be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. उसका साथ नहीं देना है। अगर वो झूठ बोल रहा है, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसका साथ नहीं देना है झूठ बोल के या फिर उसको सपोर्ट करके। अपना ओपिनियन बना लीजिए, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना अरेज हो, लेकिन अपना एक खुद का ऑनेस्ट जो है ओपिनियन बना लीजिए ऐसे सिचुएशन में भी, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। एंड इफ यू कैन नॉट हेट एनीवन even when they hate you, if you can be virtuous in these ways but still not think too highly of yourself. और इन सभी सिचुएशंस में अगर आपकी प्राइड, सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बहुत ही हाई है और फिर भी आप समझते हैं कि मुझ में ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसके लिए मुझे खुद को बहुत ही दूसरों से अलग समझना है, तो आप रियल में, तो आप यहाँ पे रियल में बहुत ही वर्चुअस है, ऐसा वो कहते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लॉयल रहना है और फिर जिम्मेदार रहना है, और ये सब चीजें करते हुए भी, टॉलरेट करते करते हुए भी, पेशेंस मेंटेन करते हुए भी आपको खुद को दूसरों से अलग नहीं समझना है। आपको उनसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा नहीं समझना है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप रियल में ही बहुत ही वर्चुअस पर्सन है, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. तो आगे वो कहते हैं, if you can dream and not make dreams your master, if you build your ambitions, big ambitions, बहुत ही बड़ी आपके जो ड्रीम्स है, अगर आपने ऐसे कुछ ड्रीम्स बना लिए हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर विदाउट बिकमिंग द सर्वेंट टू इट। आपने बहुत ही बड़ा ड्रीम देख लिया है, लेकिन उसका सर्वेंट आपको नहीं बनना है। इफ यू कैन बी एनालिटिकल but not get lost in analysis. If you can take a measured approach to success and failures, seeing them both as temporary and not especially meaningful, if you can handle it when unscrupulous people distort your sincere words to deceive the ignorant. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत ही बड़ा ड्रीम आपने देख लिया है, लेकिन उसके पीछे भागते भागते
अगर आप अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं तो ये गलत है। अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है और अपनी भावनाओं को अपना मास्टर नहीं बनाना है, बल्कि हम खुद अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख लें। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक आप एफर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर उस एग्जीक्यूशन में आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लगती है तो ऐसा कोई एफर्ट आपके लिए मायने नहीं रखता है। इफ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, आपको किसी चीज में सक्सेस मिलती है, किसी घटना में सक्सेस मिलती है, या फिर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, या फिर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो ऐसे दोनों भी सिचुएशंस में विक्ट्री एंड डिजास्टर, ये दोनों भी कंडीशंस में एक तो हमें बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होना है, और दूसरी बात ये कि डिजास्टर सिचुएशन में या फिर वर्स्ट सिचुएशन में बहुत ही अनहैप्पी होना, या फिर नाउ इन डेज पीपल आर थिंकिंग टू सुसाइड, या फिर बहुत ही प्रेशर लेने से हार्ट अटैक्स आने लगे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होने लगी है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, जो कि हमारी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क बन जाती है। तो इन दोनों चीजों को हमें बैलेंस करना है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए तो भी बहुत खुश नहीं होना है, टेक इट लाइटली, एंड इफ यू आर इन अ वर्स्ट सिचुएशन देन ऑल्सो you should not carry the pressure of that bad situation or worst situation। बहुत ज्यादा प्रेशर उस परिस्थिति का हमें नहीं लेना है जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई हुई है। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय न्यूज टू मेक a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with on worn out tools। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बात बताई है कि you must have to stick to the truth, और किसी का ट्रैप में यहाँ पे हमें आना नहीं है। हम ऑनेस्टली सत्य के साथ हमें रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन रेज हो जाए, अगर कोई ट्रैप भी बना ले हमें फंसाने का, फिर भी हमें अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहना है। ये बात उन्होंने यहाँ पे अपने बेटे को बताई हुई है। ये जो सभी टीचिंग्स है वो यहाँ पे किपलिंग्स जी ने अपने बेटे के लिए दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ he is not giving his teachings to his son but to the readers who are reading this poem। if you can make one heap of your one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, and if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on। सो फ्रेंड्स, आगे वो कहते हैं कि जो कुछ भी सक्सेस आपको मिली हुई है, जितने भी सक्सेसफुल आप अपनी लाइफ में रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपको सब कुछ अपना दांव पे लगा देना पड़ता है। जैसे कि ये सिचुएशन पांडवों के लाइफ में भी आई थी, और उस टाइम उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। सब कुछ हारने के बाद भी उन्होंने एक नई एज को जन्म दिया था, जिसे कि हम कलयुग कहते हैं, और उसके लिए लॉर्ड श्री कृष्ण जी ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे वो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना भी हमने कमाया हुआ है, चाहे वेल्थ हो चाहे प्रेस्टीज हो, अगर वो किसी दिन हमें दांव पे लगाने की जरूरत पड़े तो पूरी तरह से उसे दांव पे लगा दो। डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, चाहे हम पूरी तरह से
उसे लूज भी कर दें। और अगर हम लूज करते हैं तो उसके बाद एक नई शुरुआत करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है। इफ यू कैन talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's it, that is in it, and which is more, you will be a man, my son. आगे वो कहते हैं, इफ यू कैन मिंगल with the masses without losing your own moral compass and travel in the highest society without becoming haughty. वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा क्राउड के साथ चल रहे हैं लेकिन उनके साथ चलते हुए भी आपकी अपनी एक पोजीशन अगर आप मेंटेन करते हैं, अपना वर्च्यू अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं, तो आप उस क्राउड से डिफरेंट है। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, अगर राजाओं के साथ भी चलते हैं फिर भी पूरी तरह से डाउन टू अर्थ है, तो उस टाइम भी आप अपना वर्च्यू मेंटेन करते हैं। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच। और उसी के साथ वो कहते हैं कि कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, ना ही आपका मित्र ना ही आपका शत्रु, किसी भी बात से आप हर्ट नहीं हो सकते। तो एक ऐसी कंडीशन को प्राप्त कर लेना है जहाँ पे हमें चाहे संपत्ति हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ बहुत ही क्लोज लोग हो, मित्र हो, शत्रु हो, ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो रिलेशंस हैं, हम पे किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी एक कंडीशन हमें लाइफ में प्राप्त कर लेनी है जिसकी वजह से हम कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आए, चाहे बहुत अच्छी सिचुएशन आए, तो उसमें से हम पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो किसी भी बात का हम पे कोई असर नहीं हो सकता है। चाहे दुख भरी सिचुएशन आए तो उसमें भी हम बहुत ही पेशेंस के साथ उसे ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी एक कंडीशन हमें प्राप्त कर लेनी है। यही मैसेज उन्होंने अपने बेटे को या फिर अपने रीडर्स को दिया हुआ है। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you will be a man, my son. आगे वो कहते हैं, if you can treat everything with respect, but avoiding idolizing anyone in particular. If you can fill up every second of unrelenting time with worthwhile action, then the world will be your oyster. And more importantly, you will be a true man. तो बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है। अगर आप ऐसे सिचुएशन प्राप्त कर ले तो आप एक ऑयस्टर बन जाते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं जिसे कि सब प्रेज कर सकते हैं। और चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक जो प्रिंसिपल है जो कि हमारे हिंदू धर्म में या फिर भगवत गीता में बताया हुआ है, वो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ हमें अपनी प्रीचिंग्स में ये बताया हुआ है कि we have to maintain our patience and tolerance and never to be greedy. तो ये बात यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रीच की हुई है या फिर टीच की हुई है अपने इस पोयम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और दिए हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको
इस पोएम के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।